اور پروفین کرنے کے لیے، اس کے غسل کرنے کے لیے برائی بھی بڑی ضروری ہے. اب ایک لائن ہے سر، ایک اور بات جو میں سبھی کو ہوا تھے، میں نے تمہارے لیے اٹریکشن پیدا کر دی شہوات میں. اب من النساء والبنین والبنات، آپ نے لاجواب چیز ہے سسٹم میں جو لاؤ. One has to strike a balance. اسٹرائک میں اب وہ بیلنس کس طرح ہے؟ ہم جھول مار دیتے ہیں ان لوگوں کی کمپنی میں. ہم اپنا جو ایک سسٹم ہے، یہ اس کا توازن رکھتے ہیں. یہ دنیا روحانیت کے مسائل اور معاملات ہیں. علامہ نے وہ اپنے بیٹے جاوید نامہ کو جو اس نے ہدایت دی تھی، اس نے بھی یہ کہا تھا، میرے دوست پڑھا ہوگا اور نہیں پڑھا، آئی وڈ ہیئر بائی ریکویسٹ آل بائی دیز ینگ لاٹ دے مسٹ گو تھرو جاوید نامہ. اس لیے کہ والیات بہت ضروری ہے معاملات میں. لیکن چونکہ پرشین میں ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لینگویج کی آخری ہچ میں کہ میں اس زمانے سے ڈر رہا ہوں جس میں آپ پیدا ہوئے. قسم اللہ سرے کے گزاری درا در بدن ہر کس کم دان جا. یہ روحانیت کے جو تقاضے ہیں کم جانتا ہے، اور میٹیریلسٹ اس کی اپروچ ہے نہیں، یہ اس کی زیادہ ہوگی. تو آگے بڑا ایک طویل ہے، بہت خوبصورت ہے. یہ کیا رجال ہوگا، آپ کو آدمی نہیں ملیں گے، آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایک طویل ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے، پیر رومی را رفیق را ساز تا خدا بخشت را. تو بات ہے میرے بھائی، میٹیریلسٹک ورلڈ ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب میں گلدستے میں یہ پھول مجھے نظر آ رہے ہیں، آل مائی دیز فرینڈس ینگ لاٹ، یہ میرے ہم سر دوست ہیونگ گرے ہیڈ. اب جس مشن کے لیے یہاں وائی وی ہیو گین ڈے مشن کیا ہے یار، جو ایک حقیقت کی تلاش میں کچھ مل جائے گی کچھ نہیں ملے گی. ہمارا سفر جو ہے یہ جاری رہے گا. کچھ دامن میں کوئی ایک آدھ پھول آ گیا تو گر گیا، بس یوں کشمکش حیات میں حد تک ہوتے ہیں مقابلے. بس یہ بات ہے. یہ ڈاکٹر ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں، یہ پاکستان میں فراڈی آؤ جی ڈاکٹر جی یہ ڈاکٹر ہمارے ہیں رسد گرانی اسلام آباد میں. ڈاکٹر جاوید ہمارے ساری ٹیم کے سربراہ ہیں، یہ اس میں کام کر رہے ہیں. سرپرائز دینے کا آپ کو پتا کیا ہے. تو مین یہ ہمارا سارا سسٹم ہے، اور اس کا نام ہم نے پاگل ڈاکٹر رکھا ہوا، فلون اسپتال کا فلون ڈاکٹر. اتفاق میں کوئی غریب تو جا ہی نہیں سکتا. پاگل پن ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عنایت کرے جناب. چلو پہلے بچوں جن نے پاگل پن کو بھول دیا. خان محمد مال صاحب ایکس پریزیڈنٹ ہیں جو رفاق بار ایسوسیشن کے 3 بار ہیں. بابا جی کے جب وہ پریکٹیکل لائف میں تھے نا، اس وقت کے بابا جی کے یہ لنگوٹیے گھر بھی ہیں. سید افتخار صاحب ہیں، آپریشن کریں گے مینیجر ہیں. لوگ 1500 لیتا ہے، ہم 800 لیں گے. لیکن گداگری قوم کو نہیں سکھانی. آ رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں نہیں قافلے کے ساتھ. امید ہے اس کے ساتھ جو اخباری نمائندے ہوں گے اس کی محفل
اور مجھے پیار جو ہے ضرب صاحب ٹھہروئے چھوٹے سے ٹھہر جاؤ چلو بھائی چلو چلو لائٹ کار لائٹ کار السلام علیکم صاحب بابے کی کیا یہ سارا لیا گیا تھا سیدھا بردہ سے بابے کے اسی پہ دفتر آئی قرآن پاک کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم Welcome, welcome, all the comers who have come, all the comers who have come, they are set by us, welcome, they are set by us, welcome, everything is grand and fair, everything is grand and fair, like the charming pleasant air, like the charming pleasant air, and we can take we share, and we can take we share. Welcome, 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 welcome. Everyone is given the chance. Participate and take the joy. We are saved with one voice. We are saved with one voice. Welcome, 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 welcome. اب حافظ یہ تلاوت کے بعد ایک بہت اچھی آواز ہے جس کو بابا جی متعارف کرا رہے ہیں اور یہ بڑی بہت جلدی اپنی شہرت جو ہے اپنی سطح پہ یہ اپنا نام پیدا کر رہے ہیں. صاحب رحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں تشریف. جتنا دیا سرکار نے مجھے کو بابا جی کے حکم کے مطابق صاحب لوگ آنکھیں بند کر کے سکونات کو ود کنسنٹریشن سنے تنہائی سے ڈوب کے اور گنبد خضرا کا تصور گنبد خضرا کا تصور قائم کریں جن کار نے مجھے کو اتنی میری اوقات
کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ویسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھے کو تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھے کو عشق شہر بتا سے پہلے میں تھا مفلس و خستہ حال عشق شہر بتا سے پہلے میں تھا مفلس و خستہ حال نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھے کو منکر ہے جو ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو ارے کون ہے وہ جس کے دامن میں کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھے کو رسول مخلوق پیش کر رہے تھے اور اس محفل کی جو اس پروگرام کی جو چیف گیسٹ ہیں ہماری انتہائی قابل احترام شخصیت ہے ویسے تو آپ ساری چیف گیسٹ ہیں لیکن آج کی یہ محفل ہم روبی نیازی کے نام کرتے ہیں چھوٹی سکرین سے لے کے بڑی سکرین تک انہوں نے تہلکہ مچادا نام پیدا کیا پھر پیک پہ جا کے اسے چھوڑ دیا آج یہی کاکی بابوں سے پیار کر کے اور دکھی انسانیت سے پیار کر کے وہ کام کر رہی ہے جس کی اس معاشرے کو اور دکھی انسانیت کو ضرورت ہے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلیان ڈھونڈی تھل اور دیگر چھوٹے چھوٹے مواضعات سے آئے ہوئے ہیں
लोगों की तरफ से हम तमाम मेहमानों के मशकूर हैं कि आपने यहाँ इस दूर अफ्तादा इलाके में इस बैकवर्ड तहसील में आके हमारी इज्जत अफजाई की और आपने ये सबूत दिया कि आप वाकई हकीकी मानों में बाबा जी से प्यार करते हैं। और प्यार का यही सबूत है कि इनकी एक आवाज़ पे आपने हमेशा लब्बैक कही। और आज यहाँ आप इसलिए नहीं आए कि आपको कुछ तमा है, बल्कि आप इस नज़रिए से आए हैं कि आज सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के हवाले से तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, वो बाबा जी से अपनी जो अकीदत है, जो मोहब्बत है, 2-2 मिनट में 4-4 मिनट में इस प्रोग्राम को मुख्तसर करेंगे, वो अपनी अकीदत का इज़हार करते रहेंगे। हम चूँकि तबला नवाज है ना जी, तो तबला बजाना हमारी आदत है, हम बाबा जी के तबला नवाज हम भी हैं। तो अगर आप सब लोग इजाज़त दें तो रूबी नियाज़ी को आप सबको वेलकम भी करें और साथ हम असली तबले पे तबला नवाजी बाबा जी की कर रहे हैं। आपकी इजाज़त है ना जी? तो हाफिज़ फयाज़ बज़मी हैं, ये माजूर भी हैं, नाबीने भी हैं, ये गुलकार भी हैं और शायर भी हैं। अपना कलाम ये खुद लिखते हैं, इनकी आवाज़ में दर्द है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिकली तबला बजा के जो हम इधर इस इलाके में बाबा जी की तबला नवाजी करते हैं उसका ये इज़हार करते हैं। आप साहब आप आगे तशरीफ़ लें, आप साहब को पकड़ के लें। आपने जब ये करें तो हल्की हल्की साथ इनकी तालियां बजा के इनकी हौसला अफजाई करनी है कि ये माजूर हो के बाबा जी का आशिक है और ये बाबा जी की शादी है। साडे दिल विच याद रवे ते नगरी बाबा दी शाला सदा आबाद रवे। नगरी बाबा दी शाला सदा आबाद रवे। बाबा जी का गाँव यही, बाबा जी का गाँव यही, हम सब यहाँ रहते हैं। बाबा जी का गाँव यही, हम सब यहाँ रहते हैं। रूबी नियाज़ी को, हाँ रूबी नियाज़ी को हम वेलकम कहते हैं। रूबी नियाज़ी को हम वेलकम कहते हैं। बोलो रूबी नियाज़ी को हम वेलकम कहते हैं। बाबा जी का गाँव यही, बाबा जी का गाँव यही, हम सब यहाँ रहते हैं। रूबी नियाज़ी को हम वेलकम कहते हैं। बाबा जी का गाँव यही, बाबा जी का गाँव यही, हमें जान से प्यारा है। बाबा जी का गाँव यही, हमें जान से प्यारा है। बाबा जी का गाँव यही, हमें जान से प्यारा है। असद जिलानी है, हमारी आँख का तारा है। दिल का गुलाम है ये, मेरी आँख का तारा है। बाबा जी का गाँव यही, हमें जान से प्यारा है। बाबा जी का गाँव यही, हमें जान से प्यारा है। इनसे जो प्यार करे सबकी आँख का तारा है। इनसे जो प्यार करे सबकी आँख का तारा है। बाबा जी का गाँव यही, अल्लाह इसको आबाद रखे। सब कहते हैं बाबा जी का गाँव यही, अल्लाह इसको आबाद रखे। इतना प्यार करो
हसन नकवी के लोगों मेरे अफकार पे पहरे न बिठाओ, जज्बा कभी पाबंदे सरासर नहीं होता। तो हाफिज साहब माजूर ज़रूर हैं, लेकिन इनके जज्बात जो हैं वो कैद से आज़ाद हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। हमारे एक बाबा जी से बड़े देरीना प्यार करने वाले, ये उस वक़्त से प्यार कर रहे हैं जब बाबा जी प्रैक्टिकली लाइफ में थे, जब इस इलाके की खिदमत करते थे। सड़कें बनाना इनका शआर था, डिस्पेंसरियाँ, हॉस्पिटल, गर्ज के दुखी इंसानियत की खिदमत इनका फ़र्ज़ अव्वलीन था। उसी फ़र्ज़ में इनके एक साथी थे, इनका नाम है हाफिज़ खान मोहम्मद माल। ये खुशाब जोराबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और बे इंतहा बुलंद सतह की ये मुकर्रर भी हैं। ये बाबा जी ये खुश नसीब है कि पिछले दिनों बाबा जी ने इनको खिलाफत से नवाजा, और ये दी नेशन अखबार और दी न्यूज़ अखबार के ये नुमाइंदा भी हैं। तो इनका वो पेपर, उस पेपर में इनका एक मजमून छपा जिसमें इन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान बाज़ाब्ता तरीके से करने की बजाय खुद ही इन्होंने कर दिया कि मैं खलीफा नामज़द हो चुका हूँ। तो आज शाम में आपको मुबारक भी पेश करते हैं और ये गुजारिश भी करते हैं कि आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। वाजिबुल एहतराम बाबा जी साहब, मोहतरमा रूबी साहबा, दीगर हाज़रीन मजलिस, अपने अजीज़ भाई से, अपने पीर साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ रखते हुए सादात के दरबार में और यहाँ के दरबार में कोई मेहमान खुसूसी नहीं, सब यहाँ के कोशचीन हैं, सब ही मेहमान उमूमी भी हैं और सब मेहमान खुसूसी भी हैं। मुझे रूहानी खुशी और मसरत हुई कि आज रूबी साहबा के इस्तकबाल में, हुस्न के इस्तकबाल में हम मुशाक भी अपनी आँखें फशरा की हुई थी, हम भी कतार में खड़े थे। और फिर ये कि चूँकि पीर साहब आपसे प्यार रखते हैं, आप बाबा जी से प्यार रखती हैं और एहतराम करती हैं, तो इसलिए इकबाल के बकौल ज़ां के तू महबूब यार मास्ती, हम तो दिल अंदर किनारे मास्ती। जमा कर लूँ कि जिस तरह तू हमारे महबूब की यार और पसंदीदा शख्सियत है, हमारे जिस्म में इस तरह है जिस तरह ये दिल धड़कता है। तर्जुमा के साथ हो जाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, खुशारूज़े कि आई वो बसद नाज आई, बेहिजाबा नसूए महफिल माँ बात आई। तो मैं असली खलीफा है, कोई शक नहीं। मेरे लिए यकीनन ये बाइश तमानियत है। आपका इस्तकबाल भी खुशामदीद कहता हूँ। रूहानियत के मुआलिज के साथ साथ जो डॉक्टर साहबान हमारे फिज़िकल मेलोडीज़ और एलिमेंट का इलाज करते हैं, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। ये 5 मिनट की पाबंदी नहीं, आप पे कोई पाबंदी नहीं, खलीफों का हक होता है, बाकी अकीदतमंद है, आप खलीफा हैं। मेरा इस खानवादा से ख़ानदान सादात और बुखारी के ये जो चश्मे राज आपके सामने हैं, इनसे मेरा अकीदत, मेरा प्यार बरसों तक फैला हुआ है। फ्रॉम दी होली पास्ट। शाह साहब, इनके जद अमजद, इनके बुज़ुर्गों ने अगर कड़ी मिलाई जाए तो सैयदना अली अलैहिस्सलाम तक जा पहुँची है। इंसानियत की खिदमत में इस ख़ानदान का जो ताल्लुक़ इस इलाके में है, यकीन जानिए कि आपके फ़हम व फ़िरासत से मुबालग है। प्यासी इंसानियत के लिए चश्मों का इजरा हो, इन सादात की मेहनत से पानी जारी हुए, सड़कें अगर बिछाई गए जिस पे आप चल के आए हैं हमारे ज़िला खुशाब तक, अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल के, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है।
مفید علی صاحب کے لیے تاکہ یہ سموتھ سیلنگ ان کی ادھر ہو آپ کے لیے. یہ سڑکیں جو ہیں ان میں لہو ہمارا جلا ہو کہ جان و دل محفل میں کچھ راہ فروزاں ہوئے تو ہیں. اس میں اس خاندان کا تعلق ہے. ایک بات اور کہ اس وقت کئی ڈاکٹر صاحبان، کئی وکلاء، ڈھیر سارے وہ افراد ہیں زندگی کی مختلف کرسیوں پہ متمکن اور جلوہ افروز ہیں. اس خاندان نے ان کو للہ فی اللہ فی سبیل اللہ اپنی جیب سے، اسی طرح بات ہے اپنی جیب سے خرچ کر کے ان کو پڑھایا. جن لوگوں میں یہ پڑھنے کی صلاحیت تھی لیکن ان کی جیبیں مفلس تھیں، ان کے پاس سکوں کی جنکار نہیں تھی. یہ بات میں اس دور کی کہہ رہا ہوں جب ابھی میرے پیر صاحب نے مقام ولایت میں قدم رنجن کی فرمایا تھا. سلطان العارفین کے ہم مدح اس لیے ہے کہ وہ صرف آخرت کی بات نہیں کرتا. صرف ولی جو یا زیر زمین کی بات کرے، قبر کے نیچے بات کرے یا آسمان کی بلندیوں کی بات کرے، ٹھیک ہے ان کی بھی مقام ولایت ہوگی، لیکن اصل پیر یا ولی وہ ہے جو اس زمین پہ چلنے والے ہم جیسے گناہ گاروں کے دکھ درد کا بھی علاج کرے، ہمارے پریشانیوں کا بھی اظہار کرے. He must try to preempt all the maladies, all the sufferings, all the worries and woes of our life. تو بات صرف بہت سارے مل جائیں گے جو آخرت کی بات کریں گے، جو زیر زمین قبروں کی بات کریں گے. شاہ صاحب سے میری عقیدت یہ بھی ایک حصہ ہے کہ آپ نے دکھی انسانیت کے لیے آج مجھے یہ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان جو مجھے چہرے نظر آ رہے وہ اس بات کا آئینہ دار اور غماز ہیں کہ ان کی انسانیت کے ساتھ کس حد تک ان کی وابستگی. شاہ صاحب مقام ولایت میں ٹائم چونکہ کم ہے، شاہ صاحب جب مقام ولایت میں تشریف لائے انہیں کسی جاگیر کی ضرورت نہیں. آدمی اس لیے ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا دیتے ہیں لوگ، اس لیے محترمہ وہ چہرے سجا دیتے ہیں کہ شاید کسی کو جلب ظاہر کی ضرورت ہو، کسی نے کوئی پراپرٹی گریب کرنی ہو، کسی کے کوئی اور مقاصد ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کو بحمداللہ نے کسی پراپرٹی کی ضرورت تھی، جائیداد کی، مائنڈ ہولڈر ہیں، کوٹھیاں ہیں، گھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارا دیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے آپ تک پیار کرنے کی جو مسافت طے کی ہے، اپنی جائیداد کو ادا کرتی ہے، انہوں نے بنایا کچھ نہیں. اس لیے آج جب ہم ان کے عقیدت میں کھڑے ہیں تو میں اس ٹرم میں اور اتنی واضح الفاظ میں کہی کہ آپ ان کے لیے تھوڑا سا انگریزی اردو میں کبھی کبھی لکھتے ہیں تو میں نے کہا مرشد یہ میں اگر حکم ہو تو میں لکھ دوں بعد میں یہ جو آپ اس کو فرما رہے ہیں. اب یقین جانے میرے لیے بھی ضمیر تھی، میں نے کہا یار اپنی ڈائریکٹری سے بہت وہاں تک پہنچا ہے. یہ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کا سب فرما رہے ہیں. یہ عقل کے دلائل تھے نا جی، عقل ایک میرے دماغ شاہی تھا لگے باپ. تو شاہ صاحب نے کہا صاحب آپ لکھیں نہ لکھیں، درویشوں کو اخبارات کی ضرورت نہیں ہے. اب لازماً ان کا مقدر بن چکا ہے حضرت رسوائی ہے اور اب وہ دیر نہیں لکھ سکتے. اگلے روز میرے سیکرٹری ہیں، میں پریس صدر ہوں، میں نے جنگ سے کہا حضرت کی خبر میری شاہ صاحب کی ملاقات ٹیلی فون کی. انہوں نے پہلے گھوم کے میری طرف دیکھا کہ آپ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، کب ان کی ادھر شہباز شریف ہے، ادھر شہباز ہے، ادھر نماز ہے، یہ کس طرح بات کہتے ہیں؟ یہ عقل مانتی نہیں. میں نے کہا میں عقل کی جگہوں میں اور گورکھ ملکوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شاہ صاحب تو میں نے کہا کہ وہ تحریری ثبوت ہے اور آدمی کہتے ہیں کہ یہ پڑھ ہے کسی مجھول، لیکن کچھ عرصہ بعد ہم نے اپنے آپ کو کہ 4 مہینوں کے بعد جو شاہ صاحب نے بنایا تھا وہ من نوان میں لفظ مدد پر وہ ہو گئی. اب یہ سسٹم ہے، اپنا ایک درگاہ ہے، خدا بے دن ہے. میں مختصر یہ کہوں گا کہ ابھی میں کہہ رہا تھا مرشد روم میں یہ فرمایا تھا کہ ہیچ آہن خود بخود میں نہیں سکتا، کوئی لو خود بخود کروا نہیں ہو سکتا. ہیچ مردے خود بخود شیخ نہیں سکتا. آدمی جتنا ہی زیرک ہو وہ خود بخود شیخ کے اور یہ مقام اور یہ حاصل نہیں کر سکتا. اگر تو سنگے کھا رہا ہو مرمر شریف، ہو سکتا ہے تو اپنی ذات میں زیادہ حسین ہو، وہ دوبارہ ہو سنگے کھا رہا ہو مرمر ہو، چون بصاحب دل رسی کو ہر شریف. جب تو کسی صاحب دل کی محفل میں جائے گا موتی بن جائے گا. پھر آگے جو آخری بات انہوں نے کی ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال آتات دے رہا. تو وہ سینکڑوں سال کی جو خواہ مخواہ کی گریہ کاری کی یہ جبی سائی ہے،
یہ مسترب سیدے ہماری جبیل نیاز میں جو مسترب رہتے ہیں، ریاکاری ہے، ایک سسٹم ہے، تو ان کی محفل میں تھوڑا سا بیٹھ جانا روحانیت کے القاء ہے۔ آخری میں یہ عرض کروں گا کہ اب محترم یہ ادھر صورت رحمان ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں کہ اب میں متکلم ہوں آپ کے سامنے کھڑا، میرے الفاظ آپ کے لوح ذہن کے اور لوح قلم پہ یقیناً مثبت، منفی، غصے، پیار کے اثرات رکھتے ہیں۔ ہر متکلم کے جو الفاظ ہیں وہ جس کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہو سامنے کبھی ہم نغمہ سنتے ہیں، محترمہ ربینہ صاحبہ ہم میں رقص ہو جاتی ہیں، ہماری یہ دل باغ ہوتا ہے، کبھی ہم میں یاس ہو جاتے ہیں، یعنی ہر بول جو ہے ہمارے دل پہ سم ہوا رہی ہے، یہاں یہ کوئی تعریف کر رہا ہے۔ اب کیا جو خدا کے منہ سے الفاظ نکلے ہوئے ہوں، یہ ایک بڑی موٹی سی بات ہے، اس میں زیادہ منطقی اور فلسفے کی یا ریشنل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلے ہیں اور روح الامین جیسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مطلب ایک ٹو پائپ لائن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب وہ بات ہم جب سمجھتے ہیں تو کیا وہ ہماری روحانیت پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا اندر کے انسان کو درست کرنے میں ان کا اثرات نہیں ہے؟ یس ہے اس میں، کیونکہ قرآن عزیز سننے سے اتنے مسلمان ہوئے ہیں، شاید کسی تلوار کے زور سے یہ اتنی نہیں، تو براہ راست مقصد یہ ہے کہ الرحمن اللہ بالقرآن الکریم اسمان اللہ بیان، اس کا ایک اثر ہے 31 دفعہ فوقی اعلیٰ معذرت ہے جو ہمارے اندر کے انسان کے اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن عزیز سننے سے ڈاکٹر ہامن، میں ناؤ آئی ایم ایڈریسنگ می آل ڈاکٹرز جو ایلیٹ یہاں اویلیبل ہے، کہ ہامن ڈاکٹر جو موجود ہے ہومیوپیتھی کا، اس نے اپنی کتاب جو آرگینو لکھی ہے تو اس نے پڑھی ہوئی، اس نے کہا یہ جو اوپر ہم یہ بیمار ہوتے ہیں، ہمیں یہ پھوڑے ہیں جی، ہمیں یہ بخار فیورز ہیں مختلف ٹائپس کے، اور ہمیں یہ جو ایلمنٹس لکھی ہوئی ہیں یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اندر کا انسان بیمار ہوتا ہے، پہلے حافظ خان محمد بیمار ہوتا ہے، جب اندر کا انسان بیمار ہوگا تو باقی یہ علامات ہیں جو بیمار انسان آگے جس کا اظہار ہوتا ہے، یہ علامات جو سمٹمز ہیں جن کو ہم بیماریاں کہتے ہیں، اگر اندر کا انسان ٹھیک ہو جائے تو علامات اس میں جو ہیں خود ونڈر ڈاؤن ہوتی ہیں، سیٹ ہو جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، قوت مدافعت ہو شافی یہ قوت مدافعت سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عزیز کا اعجاز ہے۔ اب میں یہاں کھڑے ہو کے جب پیر صاحب نے محبت فرماتے ہوئے مجھے کہا بھی آگے یہ پھیلا، مجھے ایسا گناہگار مجھے اپنے پہ غلط فہمی نہیں ہے، مجھے علم ہے کہ میں میرے کتنی شاکاری ہے، کیونکہ پیر صاحب نے مجھے مہینہ ڈیڑھ پہلے تو اخبارات میں دوستوں نے دے دیا، ادھر ہی کا ایک ہے جی اپنا شاہ صاحب، یہ پنڈی کیا نام ہے ادھر یہ شہر ہے پنڈال، وہاں کے حاجی محمد شریف صاحب ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اب صاحب یہ اخبار میں نے پڑھا ہے شاہ صاحب نے آپ کو خلعت فاخرہ عنایت کی ہے۔ میں نے کہا مہربانی فرمائی ہے، مجھے دستار دی ہے اور مجھے اب یہ ایک انوکھا تجربہ ہے میرے لیے، تو میں نے کہا حاجی صاحب یہ ہے، کوئی بیٹھا ہوگا پنڈ دادن خان کا، ادھر مجھے لم نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو بابا جی نے جو مجھے ہدایت کی تھی، میں نے صورت رحمان کی وہ انداز ان کو عرض کر دی ہے، میں نے کہا اس انداز میں آپ سنیں، یوں پانی پہ آپ پھونک دیں، اس طریقے سے آپ 3 گیپس میں اس کو آپ نے پینے ہیں۔ تو بابا جی یہ ان کا مجھے ویک بیک آئی ریسیو دا میسج فرام دیٹ دا پرسن، اس نے کہا صاحب مجھے خوشی ہے کہ میں خاصی حد تک میری جو مرض یہاں میں نام نہیں لے سکتا، اس پہ نسبت کر چکے تھے، جو ہی واز آپریٹڈ اپان بائی دی ڈاکٹرس۔ اب جب نسبت جسم میں داخل ہو جائے تو اس کا علاج تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اس حاجی محمد شریف نے اب اس کی محبت کے پیغام ہوتے ہیں، اب میں بھی تھوڑا سا اندر خوش ہو رہتا ہوں کہ چلو شاہ صاحب کی وساطت سے اب میں بھی سب میں شامل ہوگا، مجھے پتا ہے کیا شریوخ خدا میں اور خدا یہ سسٹم۔ تو یہ پریکٹیکلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بات اب میں اس کو میں نے پریسکرائب یہ پروگرام بنایا کہ انشاءاللہ العزیز ہاں بھائی سنڈے ٹائم کے 1 گھنٹہ وہاں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ گناہ کرتے ہیں وہاں میں شاہ صاحب انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے یہ احباب جو دوسری چیز ہیں ان میں سے جس کا آپ اس میں گرامی ہم کہیں گے تو شاہ پہ میں گرینڈ گیدرنگ میں انشاءاللہ یہ سسٹم میں بناؤں گا۔ تو بس میں مختصر سی عرض کرتا ہوں کہ میں شاہ صاحب کا مشکور، آپ دوستوں کا مشکور،
کہ آپ نے یہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے، شاہ صاحب یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشی کہ آپ نے ہمیں اچھی محفل میں، آپ کی مجلس میں، آپ نے وہ سلطان العارفین نے کہا تھا کہ طالب 3 دفعہ انہوں نے کہا طالب بیا طالب بیا طالب بیا، اے طالب حق آ میرے پاس آ. 3 دفعہ کہنے کے بعد تار اسانم روز اول باقا، تاکہ میں تمہیں پہلے دن ہی خدا کے پاس میں پہنچا دوں. روبی تھل پہنچنا مشکل ہے، خدا کے پاس تو یہ روبی نیازی صاحبہ یہ بڑی مشکل ہے. ایک شخص دعوے دار ہے، اس نے آپ کی مساطت سے، منشا صاحب آپ کی مساطت سے اگر ہم ان کے قدموں تک ہم پہنچے ہیں، یہ اس ماحول میں آئے، تو یہ آپ کی کرم نوازی ہے، آپ کی مہربانی ہے، ہماری نہیں ہے. آپ جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ ہم پھر چلے آئیں گے. تو آخر میں سب دوستوں کا، سب عزیزوں کا اور آپ کا بھی خاص طور پر مشکور ہوں. اب دل تو یہ چاہتا ہے جس طرح ماں کا ایک بچہ کرائی کرتا ہے، ہر ملک اسٹارٹس اوزنگ آؤٹ فرام اے سولن بریسٹ، وہ اس کی ایک سسٹم ہے. ہم بھی چاہتے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے اور شام تک ہمیں گفتگو رہے. بحرف میں تمام گفتن تمنا جہاں را، ایک حرف میں یہ تمام دنیا کی خواہشات کا اظہار ہو سکتا ہے. منا شوق حضوری تو دادم داستان رہا. یہ لمبی بات میں نے اس لیے کہہ دی ہے کہ اس بہانے تھوڑا سا روبی کے ساتھ ہماری گپ شپ ہو جائے، تھوڑی سی فرصت. تو یہ ساری کہانی ہم نے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اصلی خلیفہ جیسا پیر ہوگا ایسا خلیفہ بھی ہوگا. بہت پیار کرتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اظہار خیال آپ کے خلاف پتہ لے کے بیٹھ جائیں. السلام علیکم. ڈاکٹر محمد جاوید میرا نام ہے. ڈاکٹر صاحب بابا جی پاگل ڈاکٹر بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، کاکا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. جو ان کا دل ہوتا ہے، جو میں انہیں کہتا ہوں یہ نہیں بتاتے آپ لوگ، جو میں انہیں کہتا ہوں. بابا جی کا جس طرح آپ لوگوں سے رشتہ ہے، پیار ہے، اسی طرح میرے سے ہے، میرا ان سے جو بھی اللہ نے بنا دیا. سورہ رحمان کا بتاتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف کا بتاتے ہیں، 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی کو بتاتے ہیں. آپ سب لوگ سمجھتے ہیں دکھی انسانیت. بات ان کی پیچھے بھی بات اصل جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندوں کو مردہ کرنے کا دور نہیں رہا اور نہ مردوں کو زندہ کرنے کا رہا. کافی آبادی ہے، جس طرح سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دو، لیکن مردہ دلوں کو اگر زندہ کر سکتے ہو تو اس کے لیے کوشش کرو. یہ بیسک ان کا جو تھیم ہے، جو ان کی کوشش ہے نظر آتی ہے. اس میں چاہے وہ روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، جس کو بھی ہے، اگر دل میں بے سکونی ہے تو وہ بیمار ہے، چاہے اس کا جو مرضی نام آپ رکھیں. دل میں سکون آ گیا تو وہ بیماری چلے گی. وہی دولت ہے. اس کے لیے قرآن سنانے کا جو طریقہ کار سمجھاتے ہیں. لوگ فراڈیے بھی کہتے ہیں، میں بھی نہیں کہتا ہوں. میری نظر میں تو ایک نگاہ سے بھی وہی کام کر دیتے ہیں جو ہمیں دوسرے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، ایسے کر لو ایسے کر لو. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ بابا جی جو ہیں اب اس فراڈ سے باہر آ رہے ہیں اور بات اب راز خود ہی کھولنے لگے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. پہلے تو یہ انہوں نے کئی تہوں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اب پتہ نہیں خلافت کی تہوں میں چھپانے لگے، خلافتیں بانٹنے لگے. مجھے کہہ رہے تھے خلافت لے کے نہ بیٹھ جانا. پتہ نہیں خلافت لے کے بیٹھ جاتی ہے یا بندہ لے کے خلافت کو بیٹھ جاتا ہے. خلافت کا تو مجھے نہیں سمجھتی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے. ایک ڈیوٹی ہے جو ہر امتی نے دینی ہے اور اس کے ذمے ہے. اس میں کسی کا خلیفہ نام رکھ لیں، کسی کا کچھ رکھ لیں، لیکن اصل میں تو امتی ہے اور ڈیوٹی دینی ہے. مجھے سے ایک دن کوئی پوچھ رہا تھا اسی طرح سے خلافت کے، کسی نے کہا کہ ان کے خلیفے کون سے ہیں. میں کہتی مجھے نہیں پتا، ویسے میں تو ویسے ہی خلیفہ آئے گا، پڑھائی سے بھی خلیفہ ہی آئے گا کہ جی آپ ان کے خلیفے ہیں. میں کہتی یہ مجھے نہیں پتا خلیفے کا معنی کیا ہو.
یہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو کر دیں تو میں کہ یہ ان کی اپنی سمجھ ہے, آپ پھر ڈیوٹی دیں گے؟ میں کہ ڈیوٹی تو میں پہلے بھی دے رہا ہوں, پھر بھی دیتا رہوں گا. نہیں آپ خوش ہوں گے؟ میں کہا نہ خوش ہوں گا نہ ناراض ہوں گا. کوئی انہوں نے مثال دی کہ فلاں کو خلیفہ کیا گیا تو وہ رونا شروع ہو گیا کہ میں اس قابل نہیں. میں کہ وہ ان کی عظمت تھی. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں, باقی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. ڈیوٹی دینی ہے جو مرضی نہ دے سکتے ہو تو ٹھیک. باقی آج انہوں نے مساروں کو یہاں بلایا ہے, پتہ نہیں ہمارا تماشا ہے ان کا تماشا ہے. یا تماشا بنے گے تو تماش بین بن تماشا بن. تماشا بننا بڑا مشکل کام ہے. وہاں بیٹھنا بڑا آسان کام ہے اور یہاں آ کے بولنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کے میں جو پچھلی بار جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بابا جی کے ساتھ آپ پیار کرتے رہیں, بابا جی کے ساتھ آپ لوگ پیار کرتے رہیں گے تو جو بابا جی سے پیار کرتے ہیں وہ بھی پیچھے کھینچے آئیں گے. کچے دھاگے سے بندے سرکار, وہ بھی شیر شور ہیں. اب بول دی ہیں انہوں نے, اب میرے پاس باقی بچے نہیں. بابا جی کہیں گے تو ادھر آیا کریں گے آپ لوگوں کو. چلو تشریف رکھیں اور اپنا کام جا کے شروع کریں, چیک کرے گا. ڈاکٹر دیکھتا تو ایک WHO کی مانگی ہمارا مشن جو ہے بین الاقوامی سطح پہ چلا رہے ہیں. یہ اپنا تعارف یہ خود کرائیں گے آپ. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عروج ہے. مجھے شک ہو رہا تھا تیسرا نمبر میرا ہی ہے, لیکن اب اتنی خوبصورت باتیں کر گئے ہیں اور شعر سنا گئے ہیں تو میں تو پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہوں, تو بڑی سادہ الفاظ میں 2-4 باتیں بتانا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں میں اپنے دماغی طور پہ, عقلی طور پہ بالکل مائنڈ میں کلیئر ہوں, اور میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے تاکہ بابا جی کا شاید پیغام اور میسج ہماری سادہ زبان سے آپ تک پہنچے. بابا جی سے میری ملاقات بہت پرانی نہیں ہے, 7-8 ماہ پرانی ہے, لیکن پروبیبلی شاید جو بابا جی سے جتنا زیادہ متاثر میں ہوا ہوں, میں بے تحاشا لوگوں سے ملا ہوں, خاصی دنیا میں ٹریول بھی کیا ہے, اور ایز اے ڈاکٹر مریضوں کو بھی دیکھا, لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی. تو جو پیغام ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا, بنیادی طور پہ میں نے جتنی میڈیسن پڑھی, جتنی ڈاکٹری کی, اتنا ہی میں نے اللہ تعالیٰ کی شان کو پہچانا. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو شفا دینا, نہ گولیاں, وہ جو مردہ گولیاں ہیں نہ اس کے ہاتھ میں ہے. کلیئر کٹ قرآن شریف میں ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہم تو وسیلہ بنتے ہیں. اچھا, اب یہ کہ عام زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ ایک مریض کسی کے پاس گیا, ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے وہ ایک دوا دی, کوئی نہیں فرق پڑا. وہی مریض دوسرے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اور وہی دوا دیتا ہے, اسی ڈوز میں اور فرق پڑ جاتا ہے. یہ منطق کیا ہے؟ بنیادی طور پہ مسئلہ صرف نیت کا ہے اور سوچ کا ہے, اور وہ مینٹل پاور ٹرانسفر کرنے کا ہے. اور جیسا کہ خلیفہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کلام الہی ہے. سورہ رحمان جو ہے نا, یہ دنیاوی کلام نہیں ہے, یہ کلام الہی ہے, کیونکہ وہ مستند خلیفہ ہو گئے ہیں. تو اس میں قرآن شریف میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اور سورہ رحمان کے جو اثرات ہیں وہ نہ ہی صرف جسمانی ہیں بلکہ اصل میں روحانی اثرات ہیں. کس طرح ہیپیٹائٹس کا مریض ٹھیک ہوتا ہے, کس طرح ایڈز کے مریض کی علامتیں کم ہوتی ہیں, ابھی ہماری عقل جو ہے وہ ناقص ہے. ابھی تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. اچھا, اب بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ وہ پوری امت کے لیے بھیجے گئے. ہم لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے دماغ بنا کر قرآن کو, اسلام کو ایک جگہ جو ہے نا منجمد کر لیا. بابا جی کے پیغام سے میری ایک اور الجھن کھلی کہ یہ سورہ رحمان عیسائیوں کے لیے بھی ہے, ہندوؤں کے لیے بھی ہے, کیونکہ
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और अल्लाह सबका अल्लाह है। तो मैं जिस महकमे में काम करता हूँ वहाँ हमारे साथ ज़्यादातर मतलब गैर मुस्लिम ही हैं, और ज़ाहिर है उनको उस बर्फ़ से निकालना बहुत मुश्किल काम है कि उनको पहले तो मज़हब की बात बताना, फिर ईमान की बात बताना, फिर आगे सूरह रहमान की। लेकिन बड़े दिलचस्प एक दो चीज़ें हुई कि मैं अपने तौर पे सूरह रहमान सुन रहा था और उन्होंने सुन के उससे बहुत इम्प्रेशन लिया। तो पूछा कि ये आप क्या सुन रहे हैं और क्या चीज़ें, और इसकी जो रिदम है, इसका जो लय है, तो डेफिनेटली अरबिक हम भी नहीं जानते, लेकिन हम मुसलमान होने की हैसियत से उससे वाकिफ़ हैं, बचपन से हम सुन रहे हैं अरबी, लेकिन इसकी जो रिदम से जो इम्प्रेस हुए हैं वो, और मुझे यकीन है कि इस तरह अगर काम होता रहा तो बहुत जल्द वो इस तरफ राग़िब होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैंने बाबा जी से सीखी है वो दिमाग की ताकत है। ये हम सब लोग बहुत कमज़ोर हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, हम सच्चे दिल से नहीं करते, पूरे ईमान से नहीं करते। तो इनका जो यकसुई का तसव्वुर है कि सूरह रहमान सुनते वक्त आपको बिल्कुल फोकस होके, कंसंट्रेट करके, दिमाग को खाली करके अल्लाह ताला की ज़ात से जो राब्ता कायम होता है, उसका प्रैक्टिकल तजुर्बा मेरे पर कई बार हो चुका है। और मैंने जिन लोगों को आगे सूरह रहमान दी है उन्होंने भी वो फीलिंग्स हासिल की हैं, और मेरा ख्याल है कि ये वो चिंगारी वो इब्तिदा है जो अल्लाह ताला ने लिल्लाह गाँव से शुरू कर दी थी, और बाबा जी को वो एजाज़ हासिल होना है, और हमको वो एजाज़ है कि हमारी बाबा जी से मुलाकात हुई और आज हम इधर मौजूद हैं और हम तक वो पैगाम पहुँचा। ये मेरा ख्याल है कि ये इंसानी ज़राए से बालातर ये चीज़ें हैं कि हमारा इधर पहुंचना, बाबा जी से मिलना, ये हमारे बस में भी नहीं है। हम उन खुशकिस्मतों में से हैं। हमारे बस में जो चीज़ है वो प्रॉब्ली ये है कि इस पैगाम को आगे देना, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल तजुर्बात जो मरीज़ों के साथ हैं वो ही हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अब हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो किस तरह मरीज़ जो हैं सेहतियाब होते हैं। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि पूरी यकसुई के साथ जो बाबा जी का पैगाम है अगर आगे दिया जाए तो शायद उसके वसीले से हम भी यकीनन फैज़याब हो जाए। मैंने 2 महकमों से ज़्यादा, एक महकमा तालीम और एक महकमा सेहत, यही 2 चीज़ें यहाँ नायाब थी। अब मैं महकमा तालीम भी बड़ा मुझे प्यार कर रहा है, उसके जो कुछ मैं करता रहा हूँ उसका मुझे सिला मिलता है। तो मैं अब दावत दूंगा प्रोफेसर इकबाल साहब को कि वो मुख्तसर से खाने से पहले कि लोग आए खाना जल्द ख़त्म करेंगे। आए जी प्रोफेसर, आपका स्वागत करें। बाबा जी, साहब, हाज़रीन, मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं तो अपनी तन बीती और हट बीती बताऊँगा। तन बीती और हट बीती ये है कि 1996 में मुझे काला यरकान, मैं जी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ कॉलेज में, और मेरा मज़मून नफ्सियात है, जिसे आप कह लें कि दिमागी जो बीमारियाँ, उलझने और दिमाग के मामलात हैं उनको समझना, उससे ताल्लुक़ था। तो 1996 में मुझे काला यरकान, या जिसे हेपेटाइटिस सी कहा जाता है, ये हुआ। अपने तौर पर अक्ल ने जो साथ दिया, इलाज करवाए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी टेस्ट और इस तरह के जो भी जिसने जो बताया वो मैंने किया। ये जैसे इस दौर में बहुत सारे लोग थे, मैं भी नई नस्ल का एक आदमी था, बातों से वैसे ज़रा दूर रहता था, करीब नहीं जाता था। तो किसी ने मुझे कहा कि इतना सारा तुमने ये दुनिया पहले डॉक्टर देख लिए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी टेस्ट, हकीम सारे देख लिए, एक बाबे से तुम भी मिल लो। तो एक काकी मुझे बाबे के पास ले आई और बाबा जी ने कहा कि तुम ठीक हो,
تو ایسے لگا جیسے مجھے کیفیت محسوس ہوئی کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یہ تصور لے کہ میں گھر چلے گیا یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں. گھر جا کے میں نے سورہ رحمان سننی شروع کر دی, بابا جی کے حکم کے مطابق پانی پیا. 2-3 دن کیفیت کوئی نہیں بنی. چوتھے 5ویں دن ایک دن سنتے ہوئے کوئی کیفیت ایسی بنی, مجھے یوں لگا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. کچھ اشارے ایسے ملے, کچھ ذہن میں اسپارک سا ہوا جو کیفیات خدا کی طرف سے مجھے نظر آنی تھی. تو سورہ رحمان سننے کے بعد میں نے اپنی مسز سے کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. ان کا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے جو اشارہ ملنا تھا میرا علاج ہو گیا. میری ایک بانجی گنگا رام ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی, وہ اتفاق سے آئیں, جا کے اس نے اپنی نگرانی میں ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروائے میرے, اور الحمدللہ 6.5-7 سالوں کے بعد میرے جگر کے سارے ٹیسٹ نارمل تھے. جس دن میں پہلے دن بابا جی کے پاس آیا, بابا جی نے کہا کہ فیس دینی پڑے گی. میں نے کہا جی دوں گا, جہاں پہ اتنے ڈاکٹروں کو اور اتنی لیبارٹریز پہ ہزاروں روپے میں لگا رہا ہوں, ٹیسٹ کرواتا ہوں, جہاں بھی فیس دے دیں گے. کون سا یہ ہے, جگر کا مرض ٹھیک ہونا چاہیے, کالا یرکان ویسے. اور میری والدہ محترمہ بھی جگر کے مرض سے فوت ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں کسی کی رحمت کرے. تو ایک کیفیت مجھ پہ ایک خوف سا طاری تھا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہونا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا تو یہ باقی فیسیں بھی میں بھر دوں گا. اب ذہن میں یہی تھا کہ کچھ شاید جیسے بابے پیسے پوسے مانگتے ہیں, ان کو پیسے دینے پڑیں گے. تو میں جب ملا بابا جی سے تو بابا جی نے کہا کہ جی فیس ہماری دے. میں نے کہا بابا جی حکم. کہنے لگے آج کے بعد تم نے لوگوں کو جا کے یہ پیغام میرا دینا, یہ میری فیس ہے. لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے کہا بابا جی میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ٹھیک کروں. میں صرف ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں آپ کا ڈور پیٹنا شروع کر دوں, کوشش بن جاؤں. میں لوگوں کو بتا دوں گا ٹھیک ہونا انہوں نے, آپ نے پیچھے سے کرنا تو کر دیں, آگے ان کی جو ہے وہ قسمت. تو محکمہ ایجوکیشن میں جہاں تک میری آواز جا سکتی تھی میں نے پہنچائی. پاکستان پروفیسرز ایسوسیشن کے جتنے لوگ تھے, بلکہ میرے جو صدر ہیں آپ پاکستان پروفیسرز ایسوسیشن والے, وہ بھی بابا جی کے پاس آئے. اور اس طرح سے جو پیغام لوگوں تک پہنچنا تھا پروفیسرز ایسوسیشن کے پروفیسروں کے پاس, اور اس طرح سے پروفیسروں سے آگے ان کے رشتہ داروں, اور رشتہ داروں سے آگے جہاں جہاں تک بھی یہ پیغام جانا تھا وہاں پہ پہنچا. اور الحمدللہ میں بھی اپنی بساط کے مطابق, اور میرے گھر میرے بچے, اب میری مسز, ہم لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں. اور تجربہ یہ ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے. بے اولاد جو خواتین ہیں اگر یکسوئی کے ساتھ سورہ رحمان سن کے خدا سے دعا کر لیں, اولاد کی نعمت انہیں مل جاتی ہے. ٹی بی ٹھیک ہو جاتی ہے, ہیپیٹائٹس, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, اور اس طرح کی جتنے بھی مرض. اور بقول بابا جی کے یہ مرض الموت کے علاوہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تجربہ بھی یہی ہے, ہڈ بیتی بھی یہی ہے, تن بیتی بھی یہی ہے. اب بابا جی کا جو حکم ہے وہ بجا لا رہے ہیں. پتہ نہیں ہے اب اس بات سے خوش ہے نہیں خوش ہے, اپنی بساط کے مطابق میں یہ کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں. اب تک کاکی بولتے رہے, کاکی کی باری کسی کی نہیں بیچاری کی ہے, کاکی کو تکلیف ہوئی. حضرت یاد ہے وہ واقعہ بیٹے بابا جی, ایک دو واقعہ بتاؤ شرا کو. اور اسپیشلی وہ بچہ آپ کے ہاتھ ہوئے, ٹھیک ہوئے, چلو آپ کا تعارف ہو. میں پروفیسر کی مسز میں جو بھی بول کے گئے ہیں, بابا جی نے میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا ہوا ہے پروفیسر کی مسز. بابا جی نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ کسی بھی تکلیف کے لیے کوئی عورتیں یا بچہ اس پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ اللہ کر کے اس کو پانی دو تو ٹھیک ہو جائے گا. ابھی تھوڑے 2-3 ماہ کی بات ہے, کینسر کی ایک پیشنٹ تھی جن کو شوکت خانہ والوں نے بالکل جواب دے رکھا تھا کہ بس 1 ہفتے سے زیادہ یہ جی نہیں سکتی. کسی طریقے سے وہ ہمارے گھر آئی, اس کا ہم نے سورہ رحمان سننے کے لیے اس کو کہا.
जिस दिन वो आई वो इतनी उसको खांसी आ रही थी, उसकी गले में कैंसर की जो थी गिल्टियाँ छोटी छोटी वो उसको बहुत इरिटेट कर रही थी। उसको मुझे समझ नहीं लग रही थी कि ये बात तो कर नहीं सक रही मेरे से, अब मैं इसको कैसे बात करूँ और कैसे इसके साथ इसको बताऊँ कि ये तरीका करो। फिर बाबा जी की मुझे बात याद आई कि किसी भी मसले के लिए या कोई तकलीफ़ हो 3 दफ़ा अपने हाथ से अल्लाह अल्लाह करके उसको पानी दे दो तो वो ठीक हो जाएगा। बाबा जी की वो बात इन में आई, मैंने जल्दी से गिलास लिया और उसको पानी दे दिया। वो जो मुसलसल खांस रही थी वो ठीक हो गई और सो गई। उसका भाई कहने लगा कि ये सो नहीं सकती, ये तो काफ़ी दिनों से नहीं सोई। मैंने कहा देख लें वो तो सो गई, इसको तो सुकून सा महसूस हो गया। अब वो ठीक हो गई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, जो कि कब्र के करीब पहुंच चुकी थी। अब वो भी कैंसर के पेशेंट का इसी तरह से इलाज कर रही है। बच्चा एक मजदूर था जो नाबीना था, मेरा कज़न छोटा सा था अभी, तो बिल्कुल डिसेबल था, ना वो बोल सकता था, ना चल सकता था, ना देख सकता था, ना सुन सकता था। फिर एक दिन ख्वाब में वो बच्चा जो कि बिल्कुल हर तरह से वो मजदूर था, वो अपनी अम्मी को ख्वाब में कहता है कि मुझे कुरान पाक की आयतें पढ़ के सुनाओ। उसकी माँ ने जब अजान के वक्त उसकी ये बात सुनी कि ये तो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, इसने मुझे ये कैसे कह दिया है, और वो वाकई बोला वो ख्वाब में। अपनी अम्मी को उसने आवाज़ दी। उसने जब उसकी अम्मी ने नमाज़ पढ़ी, वज़ू करके कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, तो वो बच्चा जो बिल्कुल हर लिहाज से डिसेबल था, उसकी माँ का कहना है कि वो मेरी तिलावत को अपने कानों से सुन रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि वो जो उसके कान है वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर वो दिन चढ़ा तो फिर उन्होंने अपनी सास को बताया कि अम्मी जान आज मुझे ये ख्वाब आई और मैंने बच्चे को इस तरह कुरान पाक की तिलावत सुनाई है, तो मैं महसूस कर रही हूँ कि ये ना मेरी तिलावत को इसने सुना है और सुकून महसूस किया इसने। उसके बाद थोड़ी 2-2.5 घंटे की बात है कि उसकी माँ कहने लगी कि जो वो मुसलसल एक जगह पे बैठा रहता था, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था, ना वो उसको कोई हिस्स उसकी काम नहीं करती थी। तो उसकी माँ का कहना है कि जब मैं किचन में जा रही थी तो ये मेरे पीछे 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 दिखता आ गया। 3-4 साल का बच्चा था, वो चल भी नहीं सकता था। अल्लाह मियाँ ने उसकी टांगों में थोड़ी सी कुव्वत डाली और वो महसूस करने लगी उसकी माँ के इसने मैं जिधर से गुजरी हूँ वो मेरे गुजरने की राह को उसने पा लिया है और पीछे पीछे वो चल के आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा आंखें भी खोल के उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसको बीनाई आ गई है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद बहुत ज़्यादा अल्लाह मियाँ की तरफ से उसकी मौत लिखी थी। जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया तो उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, उसकी मौत हो गई। उसकी माँ को बाद में इतना अफसोस हुआ कि अल्लाह मियाँ इसको काश थोड़ी देर के लिए और ज़िंदगी दे देता तो ये हो सकता था कि ये बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन अल्लाह मियाँ ने उसकी मौत इस तरीके से लिख दी थी, ये एक उसके लिए मौज़ा था। तो इस तरह के बेशुमार मौज़े जो इंसान के देखने में आते हैं, ये सूरह रहमान की बदौलत है। कुछ ये कि जिस भी पेशेंट को हम अपने मतलब उसको बताते हैं सूरह रहमान सुनने के लिए, कुछ पीछे बाबा जी का हाथ होता है। इसी वास्ते ही वो ठीक हो जाते हैं कि बाबा जी फिर हमारे पीछे होते हैं और हम आगे वो काम कर रहे होते हैं। वरना दुआएं जो हैं वो दुआएं पहले भी काम करती रही हैं, बाद में भी इंसान के काम करती हैं। कुछ दुआएं जो हैं वो इंसान सारी उम्र कर करके तो वो उसके काम नहीं आती। फिर अल्लाह ताला का एक कुरान पाक की आयत है, उसका तर्जुमा है, और मैं सब लोगों की दुआएं कबूल करता हूँ। और जो किसी की दुआ मैं नहीं कबूल करता उसका मतलब ये नहीं कि वो नाउमीद हो जाए। नाउमीद बिल्कुल इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बीमार इंसान है वो मेरे ज़्यादा नज़दीक होता है। और मैं जो किसी की दुआ नहीं कबूल करती उसे ये ना समझे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं उसको अगली दुनिया में उसका जाके दे दूँगा। तो इस तरह से बहुत सारे कैंसर के मरीज़ जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ठीक हो रहे हैं। बाबा जी की वजह से ये काम जो है ये लाहौर में तो तकरीबन बाकी जगहों पर भी फैला, लेकिन लाहौर में इतनी तेज़ी के साथ बाबा जी की हो रही है कि मशहूरी जो भी सुनता है ये कहता है कि ये कैसे हो गया। हालांकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी ये इल्म था। यकीन कैसे बना, क्यों बना? यकीन मुझे अच्छा बाबा जी को मैं बात बताऊँ, मुझे जब मेरे हस्बैंड ठीक हुए तो मुझे काके ने तेरा एतबार जमाया, सीधी बात मुख्तसारी है। काका ठीक हो गया तो काकी के एतबार जम गया। फिर बाबा जी को मैं जब ये ठीक हो गए ये तो मानना शुरू हो गए। अभी मैं बाबा जी के थोड़े दिन ही होते बाबा जी के पास आई। मुझे शुरू से बचपन से साइड में दर्द शदीद किस्म की रहती थी और मैं कोई इंजेक्शन वगैरह या टैबलेट वगैरह लेती थी तो 1 हफ्ते से पहले ठीक नहीं होते थे। फिर बाबा जी के मैं जब घर जाना शुरू हुई, मैंने कहा बाबा जी आप प्यार तो मुझे बड़ा करके मेरे सर की दर्द को सही करें। बाबा जी कहने लगे प्रोफेसर जी ये ठीक हो गया, प्रोफेसर ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बाबा जी
मैं आपको तब मानूंगी आज मेरी अभी ठीक होनी चाहिए। बाबा जी ने मुझे वो नैया नूर की एक गज़ल है, मेरा दर्द नगमाए बेसुदा, वो बाबा जी ने लगाई। तो बाबा जी ने कहा चलो अपने सर को 3 दफ़ा ऐसे ऐसे करके झटको। मैंने झटका, मैंने कहा बाबा जी ये तो दर्द में तो और इजाफा हो गया, वो तो और तेज़ होनी शुरू हो गई। बाबा जी ने कहा नहीं ठीक हो जाएगी। फिर जब मैंने बाबा जी को वापसी की जाने लगी, मैं बाबा जी को चैलेंज करके आई। मेरा बाबा जी पे बिल्कुल यकीन नहीं पाना था। मैं कह रही थी आज मेरी दर्द ठीक होगी तो बाबा जी को मानूंगी, वरना मुझे नहीं पता कि बाबा जी के पास कुछ है, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े दिन हुए थे बाबा जी के पास गए। फिर जब मैं घर जा रही थी तो मेरे सर में शदीद किस्म की दर्द थी। तो घर जाके मेरे ज़हन में ख्याल आया कि बाबा जी जो हैं इतनी दुनिया को ठीक कर रहे, मेरे सर की दर्द को ठीक नहीं कर सके। अभी ये मेरे ज़हन में ख्याल आया कि रूहानी तौर पे मुझे उस दिन पता चला कि ये जो रूहानियत के मामले हैं वो किस तरह से हैं। अभी ये बात मेरे ज़हन में सोच ही रही थी तो 2 आदमी थे जो सर से लेके पाँव तक ब्लैक उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, और बाबा जी ऐसे जैसे फरिश्तों की तरह एक कंधे पे इधर हाथ और एक पे इधर, और लहराते हुए आके बिल्कुल हमारे ड्राइंग रूम के पास खड़े हो गए। मुझे 1 सेकंड के लिए बाबा जी की झलक नजर आई और मेरी जो तबीयत थी वो सर से लेके पाँव तक फ्रेश हो गई। और मुझे इतनी हैरत हुई ये देख के कि बाबा जी की शक्ल देखने से मैं कैसे सही हो गई हूँ। फिर इत्फाक से अगले दिन इतवार था, फिर बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने कहा कि चलो प्रोफेसर जी ये बताओ कि तुम कैसे ठीक हुई हो, तुम्हारी दर्द कैसे ठीक हुई। मैंने कहा बाबा जी कोई नहीं ठीक हुई। बाबा जी ने कहा नहीं चलो सही सही बता दो, ठीक बता दो जैसे ठीक हुई हो। फिर मैंने ये जो तरीका आप लोगों को बताया, ये फिर मैंने बाबा जी को बताया, तो फिर सारी औरतें जो थी वो और मेरा दर्द नगमाए बेसुदा, मुझे ठीक तरह से बाबा याद मेरी रूह को जो पता नहीं क्या चैन मिले इस तरह कोई है। तो ये के बाद किधर याद रहा, तो ये कोई भी इंसान जिसके नसीबे में लिखा होता है कि वो ठीक होना है, उसने वो किसी भी गज़ल पे, किसी भी कवाली पे, किसी भी नात पे अपनी कैफियत तारी कर ले और वो ठीक हो जाता है। अभी थोड़े दिन पता नहीं बाबा जी की वजह से या कुछ अल्लाह मियां की मेहरबानी की वजह से 2 औरतें ख्वातीन जिनके औलाद नहीं थी, एक तो बाबा जी के घर में बाबा जी की बेटी रहती थी, उनके घर में काफ़ी देर से औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मैं देखती हूँ कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। उसके लिए मैंने दुआ की तो अल्लाह मियां ने उसको बेटी दे दी। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक और 8-10 साल से जिनके घर में औलाद नहीं थी, उन्होंने कहा कि आपने उनके लिए तो दुआ कर दी, हमारे लिए भी दुआ करें। मैंने कहा ठीक है आपके लिए भी दुआ कर दूँगी। इस बात से दाता साहब हम बैठे हुए थे वहाँ पे, मैंने कैफियत बनी, मैंने उनके लिए दुआ कर दी। अभी पिछले महीने की बात है, वो मुझे मुबारक दे रही थी कि आपकी दुआएं अल्लाह मियां इतनी जल्दी कबूल करता है, ये तो मेरे तसव्वुर में ही नहीं था। वो इतनी खुश हुई। मैंने कहा कि ये अल्लाह मियां की मर्जी है किसको किस वक्त नवाजता है और कब अल्लाह मियां ने किसको किस बात से नवाजना होता है। बस बाबा जी की मेहरबानी है जो सारी हम इस तरह काम चला रहे हैं, और बाबा जी के प्यार या जो हमें आज यहाँ पे खींच लाया है। आप डबल रोटियां खाते रहे, कैसी होती हैं, कैसी बनती हैं, आपको क्या करती हैं, लेकिन डबल रोटियां बनाने वाले आपको अपनी आप बीती बताएंगे। एक जी डबल रोटी के जनरल मैनेजर हैं, पत्नी कौन सी डबल रोटी बहरहाल रूबी डबल रोटी नहीं है। मेरा नाम इफ्तिखार चौधरी है, सोना ब्रेड लाहौर में जनरल मैनेजर हूँ। 98 में 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, 1 माह के गैप में इलाज चलता रहा। 1 साल के बाद बाबा जी से मुलाकात हुई। तकलीफ़ रहती थी हर वक्त, ज़हन पे बोझ, परेशानी, दर्द। तो बाबा जी का पता चला, बाबा जी से मुलाकात हुई। बाबा जी ने बिठा के पूछा भी क्या बात है, बताया उन्हें कैफियत सारी के 3 आर्टरीज हैं में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर ने बाईपास का एडवाइस किया हुआ है। बाबा जी ने दुआ कराई, दुआ कराने के बाद कहने लगे जाएँ आपका बाईपास हो गया। कुछ अल्फाज इन्होंने इस तरह से अदा किए जो दिल और दिमाग को जो सुकून जो है ना उससे मिल गया। कि बुज़ुर्गों का कहना जो है ना, वो जो बात दिल में उतर जाती है वो कुछ ना कुछ असर कर जाती है। उसके बाद से वो कैफियत जो है ना, वो दर्द की या वो परेशानी की जो ज़हन पे बोझ था वो नहीं रहा। तो बाबा जी ने कहा भी अब आपने फ़ीस देनी है, आपने हर हफ्ते यहाँ पे मेरे पास ड्यूटी देनी है। कुछ अर्सा
ड्यूटी देते हैं, फिर उसके बाद बाबा जी ने इस चीज़ की इजाज़त आगे ना दी। आगे भी ये लोगों को देना ये बताते जाएं। वो सिलसिला चल रहा है, इनकी दुआएं हैं, बाबा जी की निगाह है, जिसको जो दुआ करा देते हैं अल्लाह करम करने वाला है। इनकी दुआओं से ये सिलसिला अब तक महसूस चल रहा है। और बाबा जी ये तबीयत जब तक दम में दम है ये रहेगा और है, और ये उसी तल्लक की वजह से जो है आज बाबा जी ने यहाँ पे हमें बुलाया है और हम आपके सामने हाजिर हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। सारे महकमों में काम हो रहा है और इंटेलेक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, और बाबा को काशीदार बनने के लिए, हीरो होने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन लोग कहते हैं बाबा हीरो हो गया, मैं कहता हूँ मैं हीरो हो गया हूँ। करोड़ों की जायदाद में जो मुझे सुकून नहीं मिला, गदाई में मुझे सुकून मिला, गरीबों के दर्द को महसूस होने से मिला। मुझे अखबारात के उस ग्रुप से सबसे ज़्यादा प्यार है तो जर्द सहाफ़त चलाते हैं। उन्होंने मुझे ज़मीन से उठा के आसमान तक ले गए, उन्हीं में प्यार करता हूँ। लेकिन अगले दिनों पिछले दिनों एक पागल साहब आ गया है, मुझे नहीं समझ आती वो कैसे मेरे तक पहुँच जाए, क्योंकि मैंने उनको कभी प्यार नहीं किया। वो बेचारे लिख नहीं सकते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है क्या कह सके। अगर लिखना भी जाए तो कोई छापना नहीं पसंद करता। तो आजकल वो बाबे कमीशन अपनी अखबार पे नुमाया छाप रहे हैं, उनकी दीवानगी वो खुद ही बताएंगे। इज़्ज़त सहाफ़त ने मुझे करोड़ों पति बना दिया और तुम सच लिख के क्या लोगे। मैं दावत कर दूँगा जायद जंगवी को रोज़नामा पाकिस्तान से चाहे बाकी लोगों ने तो गल की कुछ समझ आई है, मैं बिल्कुल समझ नहीं। लिहाजा खैर बाबा जी नाल मिल के इस सारे सिस्टम की तो कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन मज़ा है। और वो जो मज़ा है या जो सुकून है उसनों मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता। बाबा जी ने वैसे मैं कहा सी कि अपना जो सिस्टम है ना जी थोड़ा दरवेशी वाला है, कोई ठीक नहीं है, इसी थोड़ी सी तब्दीली करो। तो आबा कबा कोई इस तरह नहीं होगा, कोई चेले चांटे कोई ऐसा तवीज़ दिया करो, लोग आन बहुत सारे होंगे, पैसे वैसे आएंगे। वो कहते हैं कि तू मेरे नाल चल, मैं कोई एवं चेवें आदमी नहीं है, खासा सारा बड़ा जिम्मेदार आदमी है। वो इधर ले आया, इधर देखा, ये तो सच्ची मुच्ची जिम्मेदार आदमी से मेरा ख्याल से वैसे ही कह रहे हैं। लोगों नाल मेल मुलाकात दे कहते हैं जी बहुत सारे लोगों को मिले। मेरा ताल्लुक छंग नाल है, असी पीरां नूं मनदे नहीं हैं, दबदे नहीं। और कोई सैयद साढ़े हथे चढ़ा जाए तो असी उसनूं वापस खैर नहीं जाणदे। बाबा जी ने कहा जी कि सूरह रहमान नाल इलाज होएगा, कर भी रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने फरमाया भी है। मेरी समझ नहीं सी आ रही गल, उनको थोड़ी थोड़ी जड़ियाँ ना जी समझ तो नहीं आने लगी, लेकिन कोई अगर लोग कह रहे हैं तो फिर ठीक कह रहे हैं। इस हद तक मेरी गल जड़ियाँ ना जी समझनी चाहिए। बाबा जी के बारे सुनिया सी कि जी बिल्कुल जड़ा ना जी वो जोड़े साढ़े दोस्तों ने लिखा वो बाबा जी उन्होंने खुश ने। खैर हूँ मैं भी खुश हाँ कि चलो ठीक है, इसी तरह का छपना चाहिए। और कहते सन जी कि बिल्कुल गलत आदमी ने साढ़े मयार बनाया है कि इस तरह का बंदा होना चाहिए। अगर पीर है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, अबा कबा है और तावीज़ देवे और लोगों को जरा थोड़ा दुत्कार के रखे। उन्होंने जी औलाद है उन्होंने को कुत्ते शुत्ते होन, उन्होंने पाले होन बड़े बड़े इतने बड़े बड़े। वो इधर मैं आया तो ये सिस्टम भी नहीं सी, मैं कह जी भी कोई काम ठीक नहीं। वो मैं खैर अपने वालों इन्होंने दसिया भी, लेकिन मेरी गल मन ये कहते हैं जी सूरह रहमान नाल इलाज होना चाहिए, कर भी रहे हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है। लेकिन
ਉੱਥੇ ਇੱਕ MNA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਫਲਾਂ MNA ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਖਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਕਿਆਦਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂडेशन ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ तमाम बहुत काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ हैं और काम शाम कर रहे हैं और लोगों ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹਿਦੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। بس میں ان کو بہت زیادہ گزارش نہیں کر سکتا کیونکہ میں کوئی تقریر کا آدمی نہیں ہے، تحریر کا آدمی۔ اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ سورہ رحمان کا ذکر کافی ہو گیا ہے۔ آپ کے پیٹ کا خیال بھی ہم میزبانوں پہ فرض بنتا ہے، کیونکہ پھر پروگرام طول اختیار کر جائے تو پھر وہ پھر آپ کی جو ہائیں ہیں وہ ہمارے لیے مہنگی پڑیں گی۔ آپ کا احترام ہے۔ ہم اس علاقے میں مجھے جنگی صاحب کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں۔ بابا جی کی تعریف اگر میں اپنے منہ سے کروں تو وہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور بابا جی کا آج تک اختلاف ہم سے رہا ہے کہ آپ جو ہماری اولاد ہو وہ بھی میری لائن پہ چلو۔ ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، کریں گے۔ ابھی ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بابا جی کی وہ چھوڑی ہوئی جو لائن تھی، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہ سارا زمانہ ہمیں نالائق کہے گا کہ اچھے باپ کی اولاد تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی وہ طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ تو ہم اسی طریقہ کو لے کے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے یہاں سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، وہی ہم کام بڑے ڈھنگ سے جو ہماری سمجھ بوجھ میں ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس لیے کہ یہ بھی بابے کا مشن ہے۔ آپ سب کے ذمہ، بلکہ میرا چھوٹا بھائی ہے فرد صاحب، ان سب کے ذمہ سورہ رحمان ہے اور میرے ذمہ صرف انسانیت کی خدمت ہے۔ آپ لوگوں کو سورہ رحمان سنا رہا کریں، اور میں نے اس فیلڈ کو چنا ہے کہ جس کو بابا جی نے چھوڑا تھا اور جس میں مجھے لذت اور مزہ محسوس ہو رہا ہے، وہ ابھی اس میں آؤں گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ضرور، کیونکہ یہ کلام پر حق ہے اور ہمیں اس پہ یقین ہے، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہاں پہ کام بھی سورہ رحمان پہ بہت ہو رہا ہے۔ تو میں بابا جی کے چند اخبار دہرانا چاہتا ہوں جو آج پہلی دفعہ میں اپنی تجارت کو دور کرتے ہوئے جنگی صاحب کے الفاظ کو سننے کے بعد میں مجبور ہوں کہ میں وہ سنا دوں۔ یہ ان کی موجودگی میں کبھی ضرورت نہیں کرتا، ان کی پیٹھ کے پیچھے ہم طبلہ ضرور بجاتے ہیں، وہ ہمارا حق بھی ہے، کیونکہ اولاد ہونے کے ناطے یہ ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا ذکر کریں۔ کوئی برا سمجھے
किसी ज़माने में हमारा ख़ानदान हिचकिचाहट महसूस करता था, हमें मना किया जाता था कि आपने ये नहीं बताना कि हम पीर का किताब की औलाद है। हम प्रेस वालों से मुंह छुपाते थे कि इनको पता न चल जाए, लेकिन वक्त आया देखा कि एक अजीम शख्सियत जिसने इस इलाके की डेवलपमेंट की, और बाबा जी की आप देख लें कि यहाँ उस दौर में यहाँ तालीम की बहुत कमी है। बाबा जी ने अपनी स्कॉलरशिप के ज़रिए उन ज़हीन स्टूडेंटों को जिनमें अहलियत, सलाहियत, काबिलियत थी, उन्हें इन्होंने अपनी जेब से स्कॉलरशिप दे के यूनिवर्सिटियों तक पढ़ाया, और इनके पढ़ाए हुए वो स्टूडेंट आज या तो वकील हैं या डॉक्टर हैं। और इनके शहर में एक डॉक्टर है जिसका बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर अब नवाज साहब, वो DHO भी हैं। वो खुले बंदो इकरार करते हैं कि मुझे इस मकाम पे पहुंचाने वाले सफदर बुखारी साहब हैं। एक लिल्ला टाउन में एक डॉक्टर है, उनका हजरों में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी इकरार ये करते हैं कि मुझे इस मकाम पे पहुंचाने वाले सफदर बुखारी साहब हैं। ये उनकी वो साबका कारनामे हैं जो उन्होंने बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी वोट के लालच के इस इलाके की खिदमत को सरअंजाम दिया। मुझे इनके वो अखबार पसंद हैं। जब इन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि बाबा बात ये है कि आप लोग ऐसे नफरत करते हो, मेरे पास मुल्ला आते हैं, ना खान आते हैं, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग आते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि आप तो ये जो काम कर रहे हैं यहाँ इस्लाम में इसकी तो कोई इजाज़त नहीं है, ये काकियों का ये चक्कर, ये पीर काकी ताड़, ये क्या है। मैं तो फख्र से बताता हूँ कि हम उनके बेटे हैं जिन्होंने खुद अपना सब कुछ छोड़ के सब कुछ वक़्फ़ कर दिया और गंदगी को सीने से लगा के उसे सफाई में तब्दील कर दिया। तो हमें क्या आ रहा है, हम तो ऐसा। और बाबा जी का वो कौल मुझे बड़ा पसंद है कि बाबा ये जो मौलवी हैं ये सिर्फ ज़बानी बातें करते हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं करते। ये कह रहे हैं कि मैं अपने नाने की सुन्नत पे, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सुन्नत पे अमल करके मैंने नबी करीम की एक सुन्नत को अपना लिया है। वो क्या कि रसूल की ये सुन्नत थी कि वो कूड़ा खिरकट फेंके, ये उसका किरदार है। मेरे नबी का किरदार ये है कि जब कूड़ा खिरकट फेंकने वाली बीमार हो जाए तो मैं उससे दवा भी दूँ, उसकी खैरियत भी दरियाफ्त करूँ। मेरे दादे का, क्योंकि मैं ये अक्सर कहते हैं कि मैं नस्ल हैदर करार हूँ, फरार की नस्ल से नहीं हूँ, करार की नस्ल से हूँ। और ये मैंने अपने दादे की एक सुन्नत को अपना लिया कि हम अपने कातलों को शरबत का गिलास देते हैं, जो मुझे बुरा भला कहते हैं मैं उनको हमेशा सीने से लगाता हूँ। तो ये वो इनकी ग्रेटनेस है कि इन्होंने हमेशा, किसी ज़माने में खबरें वालों ने इनके खिलाफ जो नेगेटिव रिपोर्टिंग की, मेरे ख्याल है वो एक इंतहा की नेगेटिव रिपोर्टिंग थी। और चंद अहबाब इनके पास गए जो इनके अकीदतमंद थे, मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी आप ये वकालतनामा है, इस पे आप साइन कर दें ताकि हम रिस्पेक्ट डैमेज का इस अखबार के खिलाफ केस कर सकें। तो इनके वो चंद तारीखी अल्फाज थे। वो कहते हैं कि बाबा इज़्ज़त का दावा वो करता है जिसकी इज़्ज़त हो, जिसने अपनी इज़्ज़त को तलाक दे दी हो वो किस इज़्ज़त का दावा करेगा। अगर खबरें वाले ने ये लिखा है तो आप अगर हो सके तो ये पैगाम कन्वे करें कि वो कल की अखबार में इससे भी ज़्यादा गलीज़ लगे, क्योंकि मुझे गिलाफत से प्यार है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया जाए कि लोग मुझसे मुतनफ़र हो जाएं, मैं एक कोने में रह के अपने मिशन को चला सकूँ, जिसके नसीबे में हो चले। तो मैं पाकिस्तान वालों का भी शुक्रगुजार हूँ, न्यूज़ वालों का भी शुक्रगुजार हूँ, खबरें वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जिन अखबारों ने नेगेटिव अंदाज में इनकी रिपोर्टिंग की, उन्होंने बाबा को इंटरनेशनल शख्सियत बना दिया। इन्होंने गंदगी से नफरत करने की बजाय उससे प्यार किया, और ये प्यार आज इनको पूरी दुनिया में मकबूल किए हुए है। अगर ये यहाँ रहते तो पिंडी डिवीजन तक इनकी शोहरत होती। आज ये इंटरनेशनल सतह पे इंसानियत के हवाले से काम कर रहे हैं। किसी को भला लगे तो वो भी खुश रहे, जिसको भला न लगे वो भी खुश रहे, क्योंकि बाबा कमीशन नहीं दे। हाँ जी जी। अब बात ये है जी कि हम भी बाबे के पैगाम को आप तक करें, जिसको न पसंद आए खुदा उसका भी भला करे। मकसद क्या है कि अगर कोई बाबे को बुरा भला कहता है तो कम अज कम वो अपने जज्बात का इजहार करके वो ज़हनी तौर पे सुकून तो महसूस करता है ना।
हमारा यही मिशन है कि आप अगर गंदगी भी कहते हैं तो कम से कम आपका ज़हन तो मुतमईन हो गया ना कि मैंने बाबे को 2-4 गलत बातें कह दी, कोई गलत अल्फाज कह दिए। हम इसके बदले में आपको सीने से लगाएंगे, आपको मोहब्बत करेंगे, आंखें दीदा और दिल फर्श से राह कर देंगे, आपको मोहब्बत से देखेंगे। क्यों कि हमारे यही हमारी मजबूरी ये है कि हम अगर इनके तरीक़ाकार को नहीं अपनाएंगे, यहाँ यकीन करें कि जब नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई तो मुझे खबरें वालों ने कहा, मेरे जो दोस्त थे यहाँ पे जिनको नहीं पता था कि मैं बाबा सफदर बुखारी साहब पीर काकी तार साहब का बेटा हूँ, तो वो मुझे कहने लगे कि यार हमें आज पता लगा तुम लोग तो इस इलाके के ज़मींदार हो, बड़े शरीफ लोग हो, मजहबी लोग हो, तुम्हारा रहम, तुम्हारा तो बड़ा नाम है इस इलाके में मजहब में, तो हमें आज पता लगा तुम्हारा बाप इस तरह। मैंने कहा उल्लू के पट्टो ये तुम्हारी गली गलत ज़हनीयत है। तो मैं आज ऐलान करता हूँ कि मुझे फ़ख्र है उन पे कि जिन्होंने देखे कोई बाप भी उसके पास करोड़ों की जायदाद हो, औलाद हो, दुनिया की हर अशैश मुआशा हो और यहाँ पे पूरी गली जिस बाबे को सलाम करती हो, वो पीठ पे जाकर उसे ठुकरा के लाहौर की हीरा मंडी में तबलीग करके 70 से ज़ायद कैदियों को गंदी से छुड़ा के उनके निकाह पढ़वा दे तो उससे बड़ी को खिदमत हो सकती। अगर बाबे की इस तक तबलीग पे किसी को नाराजगी हो, किसी का दिल दुख कर रहा हो, उनको इसकी अदा पसंद ना हो, इस पे एतराज हो, तो हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन ये मिशन इंशाअल्लाह हर सूरत में हर तरीके से जारी सारी रहेगा। इसको अब दुनिया की कोई ताकत इसलिए नहीं रोक सकती कि असद गिलानी जैसे मेरे जवान भाई, ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हैं, ये डॉक्टर, ये यंग जनरेशन और उसको जितनी भी लोग चला रहे हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फख्र की बात यह है कि बाबा जी का अकीदतमंदों में कोई भी BA ग्रेजुएट से कम इनका अकीदतमंद नहीं है और यंग जनरेशन पागलपन से चला रही है। और ये इंशाअल्लाह परचम लेके बड़ी तेजी से गिलानी साहब की क़यादत में, डॉक्टर जावेद की क़यादत में, मेरे इन यूनिवर्सिटी के दोस्तों की क़यादत में, माल साहब की क़यादत में अब ये चलेगा इंशाअल्लाह। इंसानियत की बका के लिए हमारा ये जारी रहेगा। और मैं आखिर में क्या अर्ज करूँगा, रूबी नियाज़ी साहब की बड़ी चूँकि नाम भी है, इनके यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें अक्सर ऐसे हैं जो सूरज रहमान और बाबा जी से कम दिलचस्पी रखते हैं और रूबी नियाज़ी से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इसलिए अब आप ये बताएं कि वो क्या, एक मुझे टूटा फूटा मिसरा याद आ रहा है कि एक शेर है, पहले जफा हम तो वफा करते रहेंगे, कर प्यार सता है तो सता करते रहेंगे। और वो मुझे वजूद ज़न से है कायनात का रंग, क्योंकि इन काकियों के दम से ही ये काकियाँ ना होती तो माँ का रिश्ता ना होता, बेटी का रिश्ता ना होता, बीवी का रिश्ता ना होता, बहन का रिश्ता ना होता। तो ये खूबसूरत हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यकीन करें बुढ़े सारी बाबा जी की बात सुनेंगे, यंग जनरेशन नहीं सुनेगी। और बाबा जी के और हमने ये हथियार इस्तेमाल करना है। और एक दिन मैंने भी तजर्बा किया, वो एक रैम्बो साहब हैं बड़े अच्छे नामवर, मैंने भी किसी तरीके से उनको टेलीफोन पे चिकनी चुपती बातें करके उनको फंसा लिया। मुझे वो बाबा बिन देखे, ये भी बड़ी बात होती है, बिन देखे कोई ईमान ले आए। तो वो रैम्बो साहब मुझे कहते हैं कि यार मैं आजकल मेरी सारी फिल्में खिलाफ हो रही हैं, स्टेज ड्रामे खिलाफ हो रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें बाबा बुखारी साहब के तुम नशे हुए हो, इतनी जल्दी जो उनको प्यार करने के बाद जो शक करे उसका अंजाम बुरा होता है। ये एक फकीर की जो है ना, ये भी एक सबक है। मैंने कहा कि जब तुम पीक पे गए तो तूने बाबे पे शक किया तो फिर अपने अंजाम को तूने पा लिया है, थोड़ा इंतजार कर। तो एक दिन वो काके मेरी तबलीग नहीं सुन रहे थे सूरज रहमान के मुतल्लिक़, तो मैंने भी फराड किया बाबा जी का कि देखिए इस फराड में है क्या। मैंने कहा यारो मिलते हैं चल के उधर लाहौर थिएटर में, रैम्बो साहब ने मुझे बुलाया। तो यकीन करें तो काके मेरे साथ आ गए। उनको मुझसे दिलचस्पी नहीं थी, उनको दिलचस्पी थी कि यार उस रैम्बो को मिले। अब हम फकीरों से, ये तो फिल्म सकार कुछ नसीब है, फकीरों की कोई नहीं देखता, इनकी झलक हर कोई देखता है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि मैं आखिर में अर्ज करूं कि आपको यहाँ बुलाने का जो मकसद है वो ये हरगिज़ नहीं है। हम ना आपके आगे कोई झोली फैलाना चाहते हैं, ना डॉक्टरों से हम मेडिसिन लेना चाहते हैं, ना आपसे हम फंड लेना चाहते हैं।
बाबे ने इतना विरसा छोड़ा है कि वो हम इधर इंसानियत में तकसीम कर रहे हैं। यहाँ 2 दिन से रहा आई का कैंप, कोई मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अफजल साहब, जहाँ बाबा जी के काके प्यार कर रहे हैं। मैंने भी एक काका फंसा के मैंने कहा कि अगर तू मेरा काका है तो बाबा जी के काकों से पहले तू आई कैंप लगा, ताकि पता लगे जूनियर जो है वो इस दौर में बड़े तेज हैं, तो वो बाजी देगा। ये तो अब मैं बाबा जी को अर्ज करूंगा कि ये जो आज आपके डॉक्टर कैंप लगा रहे हैं, ये तो मेरे काके को देख के उसकी तकलीद कर रहे हैं। उन्होंने साल पहले वादा किया था, उसने 10 दिनों में किया और वादा पूरा कर दिया। लेकिन इन डॉक्टरों का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने यहाँ इस बैकवर्ड तहसील में, इस पसमानदा गाँव में, जहाँ की अक्सरियत गरीब है, जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, खाने के लिए दवा नहीं मिलती, इनके दुख दर्द बांटने के लिए ये मेरे भाई यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपसे कोई चीज़ नहीं मांगेंगे, एक लालची हम ज़रूर हैं बाबा पीर जो हैं, आखिर हम अपने करतूतों से मैं तो बात नहीं आ सकता, एक चीज़ आपसे हम ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि पीर अपने वो जो है शरीनी उसका हक होता है वो ले, और जो प्यार करने वाला शरीनी न दे वो सच्चल प्यार करने वाला भी नहीं होता। एक शरीनी मैंने मांगनी है, बाबा जी से मैं माफ़ी मांग लूँगा, अगर नाराज़ हुए तो उनके पाँव पकड़ लूँगा। वो ये है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गांव की दुखी इंसानियत से आपकी मोहब्बत और प्यार चाहिए। वो आप हमें दे, कभी कभार आके यहाँ के चक्कर लगाएं, लोगों में प्यार की दौलत तकसीम करें, किसी को इंजेक्शन लगा दें, किसी को टेबलेट दे दें, तो यकीन करें कि ये कल यहाँ पे जब ऑपरेशन हुए तो इतने वो लोग थे जिनके पास वसाइल नहीं थे, तो हर मुंह से बाबा जी के लिए दुआ, क्योंकि हमने आई कैंपेन के नाम मंसूब किया हुआ था, हर बंदा बाबा जी को दे रहा था, और वो जो बेसाख्ता बाबा जी के बकौल दिल से बेसाख्ता दुआ निकलती है, वो सेकंड के 1000वें हिस्से से पहले बारगाह एज़ी में कबूल होती है। तो मैं आपको ये ढंग बताऊंगा, बाबा जी ने मुझे कुंजी दिया कि अगर बारगाह एज़ी में मकबूलियत हासिल करनी हो तो दुखी इंसानियत से प्यार करो। तो इस शेर के साथ कि गरचे मेरा हुस्न बना शौक नहीं है, शहादत के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और अगर उतर गई है तो फिर मैं मजीद आपके दिल में बात को उतरवाने के लिए, काकी की झलक दिखाने के लिए, इनके परस्तारों को परेशानी से बचाने के लिए, फिल्मी दुनिया में तहलका मचाने वाली एक बहुत बड़ा नाम जो थी अब सब कुछ छोड़ के इंसानियत की खिदमत कर रही है, रूबी न्याजी को कहता हूँ कि वो अपने ख्याल से मुस्तफीज फरमाए। सैयद जी आपका आशिक शादी शेर बड़ा पसंद किया गया है, शेर सुना ऊंचा ऊंचा आज करके आवत साहब को बहुत पसंद है। शेर जो पढ़ने दोबारा सुनाओ। एक तो इन्हों की आमद का सुना देने इन्होंने सारे मेहमानों वास्ते एक शायर लिखा, न बिछाना राहों हम पलके बिछाने वाले। वो शेर पहले वाला सुना तो सुना रहे हैं, उसी सुनाने के लिए तो ये भी सुना दिया। तो मैं अर्शिता शेर को याद भी नहीं है, ये सुना है जी भूल गए हुए तो अहले जफा हम तो वफा करते रहेंगे, अहले जफा हम तो वफा करते रहेंगे, गर प्यार खता है तो खता करते रहेंगे। डॉक्टर साहब आए मकामी लोगों की पाए को फिर बुलाओ, देता हूँ कि अपनी याद की अपने से आपको पहले मुझे नहीं मिली नहीं मैं तो 2-3 हम तो वफा करते रहेंगे, पहले जफा हम तो वफा करते रहेंगे, गर प्यार खता है तो खता करते रहेंगे।
रोजनामा दिन के नामा निकाल रहे हैं और काकियों पे सिर्फ लिखते हैं, काकों पे नहीं लिखते हैं। आज इनकी मेरी पहली मुलाकात अपने गांव में हो रही है और मैं इनको कहूँगा कि आज के तफसीलात जो है जो कि महसूस की है रोजनामा दिन वाले फाइंड अप कर दें। उसके बाद रूबी न्याजी आपको ख्याल बाबा जी ने सही कहा है जी कि मैं काकियों पे ही लिखता हूँ क्योंकि मैं कल्चर रिपोर्टर हूँ रोजनामा दिन का, शो बिजनेस से मेरा ताल्लुक है। इनसे मेरी मुलाकात पिछले कोई 4-5 साल से है। लाहौर हीरा मंडी से हम कुछ साथी दोस्त जाया करते थे इस हवाले से कि चले वो माल के जरिए वो इलाज करते हैं, तो मुफ्त माल देंगे पेमेंट मुफ्त में जाके बस देखिए क्या हो रहा है, तमाशागिरी के लिए जाया करते हैं। फिर छोड़ दिया। फिर मैं इनसे मुलाकात लाहौर थिएटर में या इधर उधर कई दफ़ा रही है, दफ्तर में भी आना जाना रहा और पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। एक वाक़या जो मेरे है और मैं आज तक आपसे मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। एक दफ़ा धमाल देख रहे थे तो मैं लगा कि चूँकि ये एक धमाल एक रूहानी सिलसिला है और हम इसे देख रहे हैं ज़हनी तौर पर। जो दोस्त गए थे याशी यार ये अच्छी चीज़ नहीं, मैंने अपने आप को जो है ना ज़हनी तौर पर मैं ले गया खाना काबा की तरफ। वहाँ पहुँच गया। जब धमाल ख़त्म हुई तो बाबा जी ने पूछा कि आप में से कौन था जो खाना काबा ख्यालों में गया हुआ था। तो मैं सोच में पड़ गया कि इन्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं इन्हें आज तक नहीं मानता स्टिल, मतलब मेरा एक और मसला है। फिर जब इनसे पूछा कि आपको मैं हूँ और आपको कैसे पता चला, कहते बस मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी मुझे इनके बारे में इंडिकेट करती है कि कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लेकिन एक ये मेरा इनका कोई भी तरीक़ा तो रूहानी या कल्बी रिश्ता बन नहीं पाया, या ये मुझे वो कह लें कि ज़रब नहीं दे सके कि मैं दिल से कह उठता कि ये वाकई कुछ है, या मैं इसकी तरफ भी इतना राग़ब नहीं हो सका कि मैं इससे कुछ पा जाता। तो बहरहाल चले यही एक रहेगा सिलसिला, कभी ये मुझे अपना दिखा देंगे कि मैं कुछ हूँ या मैं इसे कुछ हासिल कर लूँगा। बहरहाल आज की इस महफिल में आने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी हल्का है बाप इकट्ठा कर लिया है। अब ये शायद किसी तरफ चल पड़ेंगे। मैं दावत फ़िक्र रूबी को देने से पहले 2-4 अल्फाज कहना चाहता हूँ। मेरी इससे उस वक़्त मुलाकात हुई जिस वक़्त ये टीक पे खड़ी थी, हिट हो रही थी ड्रामों में और फिल्मी दुनिया में, सुपर स्टारों में शुमार होती थी। एक दिन जान रहबो साहब को इन्होंने मेरी पास ले आए कि इसको दुआ करें इसके लिए। पर मैंने कहा इसको कहो यार 5 बार रूबी न्याजी कह दे, यही दुआ है। जब उसने रूबी न्याजी का 5 बार तो कब कभी तारी हो गई, मैं कहा जा दुआ मंजूर हो गई तेरी। और ये मकाम आया जहाँ रहबू के टिकट ब्लैक में बिकते थे, फिल्में उसके गिर तवाफ कर रही थी। एक दिन टीवी पे इकट्ठे हो गए तो कहता बाबा जी मैं तस्वीर बदलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ बेटे बाबा इतने साल तो पढ़ी है रूबी न्याजी, अब क्या हो जाना है, आप अगर इजाज़त है तो मैं सहबा पढ़ लूँ। मैं कह जा पढ़ ले, मिर्ज़ा बन जाएगा, मेरा क्या जाना है। मेरा क्या जाना है। तो इसका बनाओ कि उस ज़माने में बाबे से प्यार किया जब ठीक पे थी, उन्होंने कहा किया तो खुदा याद नहीं होता, बाबे कहाँ याद होते। बाबे इनको उस वक्त याद होते हैं ऊपर से नीचे आके गली गली बाबे घूमती फिरती होती। तो कोई सवाल पूछ रहा था कि यहाँ आने का रूबी का फंक्शन क्या है। मैंने कहा ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बाज़ार हुस्न से क्या कमाया है, लोगों की निगाह। वो लोग तो चले गए, ये मेरे साथ 10 साल से चल रही है और यू टर्न आया ज़िंदगी का। अपने अच्छा वाक़यात आप बताएगी और ये हम यहाँ के इससे काम लेंगे, बटेरे फंसाएंगे। ये मेरा जाल और तरीकी नहीं होती है जो बटेरा फंसाने गए, बटेरे का काम मैं इससे
कहा कि जल्दी इसके नाम पे फंसेंगे मेले को, कौन मौलवी को छोड़ेगा। रूबी न्याजी हो गए, अगले तोड़ देंगे दरवाजे, बाबा भी कहेंगे तो कोई महफिल में आना भी गवारा नहीं था। तो ये मेरी कौम की साइकी है और मैं इससे दावत फिक्र दूँगा कि अब आप साबित करें कि बाबा का क्या रिश्ता और यहाँ आने से क्या मतलब। एक गंदी मैली औरत का सलाम। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि जब हमारा इनर कबूल कर ले, वो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, उसको अंदर से जब कबूल कर ले हमारा इनर, तो वो काम हो जाता है। क्योंकि यकीन ही खुदा है, ईमान ही रिसालत है। खुदा को तो किसी ने नहीं देखा है, किसी आप में से किसी ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, बाबा जी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने नहीं देखा। लेकिन यकीन को तो सबने देखा है, सब ने देखा है यकीन को। इसलिए कि हम एक यकीन रखते हैं कि हम सूरह रहमान सुनेंगे हमें ये हो जाएगा। हमें तकलीफ़ हो रही है, हमारे पित्ते में तकलीफ़ हो रही है, हमारे दिल में तकलीफ़ हो रही है, हमें ये मुसीबत पड़ गई है, हमें हमारे हालात बिगड़ गए हैं, हमें कुछ तकलीफ़ें हो गई हैं, हम ये अमल करेंगे, ये सुनेंगे, ये अगर हम यकीन कर लेंगे तो हमारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। यही ईमान है, यही यकीन है, यही सब कुछ है। अब बाबा जी ने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन मैं बाबा जी की बात को पिक करने से पहले मैं मंशा साहब की एक बात को पिक करूँगी। मैंने इनकी बातों को बड़े गौर से सुना है कि हम शोबिस के जो लोग होते हैं, शोबिस के लोगों के लिए एक बात मशहूर है, खुदा को मनाना आसान है, शोबिस के लोगों को मनाना बड़ा मुश्किल काम है। और वैसे भी शोबिस का जो शोबा है, इससे लोग महजूज तो बहुत होते हैं, लेकिन इन पर यकीन डेवलप नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो मास्क हमारे मुंह के ऊपर लगा हुआ होता है स्टार का, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो टीवी स्टार हो, उसका जो मास्क मुंह पे लगा होता है वो इतना खूबसूरत और इतना रंगीन होता है कि उसके पीछे क्या चेहरा है उसको देखने के लिए एक वक्त दरकार होता है। उसको देखने के लिए एक वक्त दरकार होता है। मेरी बाबा जी से हकीकतन मुलाकात उस वक्त हुई जब फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब आप इस तरह मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तारीफ़ करना ना आता है और ना कभी आएगा, और मैं इस चीज़ को पसंद भी नहीं करती हूँ। साफ बात कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन उस वक्त उस पीक पर बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई कि जब रीमा का नाम नीचे जा रहा था और रीमा मुझसे ख़तरा महसूस कर रही थी कि अगर ये रूबी न्याजी अगर थोड़ा अरसा और रह गई तो मुझे घर में टाँकी लगानी पड़ जाएगी, मेरा क्या होगा। तो मैंने उस वक्त रीमा को, उस वक्त मेरी बाबा जी से मुलाकात भी नहीं हुई थी, मैंने उस वक्त रीमा को बोला था, मैंने कहा रीमा तुमने यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, लेकिन रूबी न्याजी ने थोड़ी यहाँ रहना है, उसने तो चले जाना है। अरे पागल, क्यों मुझसे हसद करती है, क्यों जलती है। उस वक्त तो मेरी बाबा जी से मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर एक दफ़ा बाबा जी से मेरी अचानक मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात एक ऐसी हादसाती तौर पे आप कह लें कि एक बिल्कुल अनजाने तरीके से मुलाकात हुई। मेरे ख्याल में ऐसी मुलाकात बाबा जी का, मैं नहीं कहती उनकी मुलाकातें बहुत से लोगों से, उनका तो हल्का बाब ही बहुत वसी है, अकीदतमंद ही बेहिसाब है, लेकिन मेरा तो कोई हल्का बाब नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा हल्का बाब है, बहुत छोटी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा नाम है। तो मेरी जब बाबा जी से मुलाकात हुई तो बस मुझे इतना पता है कि मुझे लगा कि दूर आसमानों में कहीं बिजली चमकी है और दो बिजलियां एक साथ टकरा गई बस। और उस वक्त जो लोग हमारे दरमियान थे उस मुलाकात में, वो आप यकीन करें कि उस वक्त इतना साइलेंस था उस कमरे में कि अगर आप सुई भी फेंके तो उसकी भी आवाज़ आई। खैर बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई और बड़ी गरजदार किस्म की मुलाकात हुई, बड़ी जोरदार किस्म की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद एक ऐसा
यू टर्न आया कि मैंने अलग ऐलान ये कहा कि मुझे अब ये काम नहीं करना। सारे लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया है, आप तो उस वक्त मेरे पास तकरीबन 15-16 फिल्में थी, मैंने सारी रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा मुझे एक भी फिल्म नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, शो बिज करना ही नहीं। खुद ब खुद मेरे अंदर तब्दीली आई। फिर मैंने बाबा जी से बात की तो बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम फिल्मों की मोहताज नहीं हो, फिल्में तुम्हारी मोहताज हैं। मुझे आज भी ये बात याद है कि बाबा जी ने कहा था कि तुम फिल्मों की नहीं, फिल्में तुम्हारी मोहताज हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा शायद फिल्में मेरी मोहताज है, मतलब शायद फिल्में मेरे पीछे पीछे चल के आएंगी, क्योंकि उस वक्त रूबी मटेरियलिस्टिक थी ना, कायद आज़म उसका हीरो था, तो वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा कि उसको समझ नहीं आई कि एक कलंदर आदमी ने, एक बुजुर्ग आदमी ने क्या बात कह दी है। लेकिन आज वो बात रिकॉल होती है जहन में, तो आज समझ आती है कि वो बात क्या थी, कि मैं फिल्मों की मोहताज नहीं, फिल्में मेरी मोहताज हैं। मुख्तसर ये कि अब तो आप लोग भी थक गए होंगे यहाँ बैठे बैठे, भूख से आप लोगों का भी बुरा हाल हो रहा होगा, है ना? सही बात है। तो इसलिए खुश्क बातें नहीं करनी है, लाइवली बातें करनी है, और ज़्यादा वक्त भी मैंने आपका नहीं लेना। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं भी अब दुखी इंसानियत के लिए काम कर रही हूँ। जहाँ मैं मतलब मुझे मौका मिलता है, मैं एक सेकंड भी नहीं लगाती कि मैं अपने कदम पीछे करूँ। मौका जहाँ मिलता है, वो जैसे कहते हैं ना कि शिकारी को शिकार मिला और उसने उसके ऊपर फौरन हमला किया और उसको पकड़ लिया, तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। मिशन बाबा जी का चला रही हूँ, बल्कि चला मैं नहीं रही हूँ, मैं तो कोशिश कर रही हूँ चल खुद ब खुद रहा है, और बाबा जी की मोहब्बत है, प्यार है, इनकी तवज्जो से चल रहा है, वरना मेरे हाथों से कुछ हो ये तो मुमकिन ही नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है। और बाकी रही अब मुख्तसर ये बात कि जो आपने क्या नाम है प्याज दुस्वी साहब, आपने जो कुछ आपने गीत की सूरत में अपने फीलिंग्स का इजहार किया, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगी शेर की सूरत में। खुश नसीब है वो जिनको नसीब हो जाए, हर एक को गमे जावदा नहीं मिलता। और आप तमाम हजरात जो इस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मेरे बाबा जी के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब से मैं ये वादे नहीं करूँगी मैं यहाँ मल्टी नेशनल प्लाजे बना दूँगी, मैं यहाँ पर मैकडोनल्ड और KFC खोल दूँगी, मैं ऐसी गलत बयानी से काम नहीं लूँगी। मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पर बहुत से बेहिसाब ऐसे लोग रहते हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, जो साहिब हैसियत है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ मुझसे बन पड़े, आपकी खिदमत जो भी कर सकूं वो हो जाए। आप लोगों ने जो इज्जत दी, जो प्यार दिया, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और मैं ये कहूँगी कि बाबा जी ने जो इतना ये सब कुछ किया था, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे होना क्या है। मैं जब इंटरचेंज पर आई हूँ तो बाबा जी ने कहा ठहर जाओ वहीं पे। मैंने कहा या अल्लाह, इतनी गर्मी धूप में यहाँ ठहर जाऊँ, आगे हो क्या रहा है, मुझे समझ ना आए कि आगे हो क्या रहा है, मुझे क्यों यहाँ पे ठहरा दिया है। लेकिन आके मालूम हुआ कि यहाँ क्या हो रहा था और किस लिए मुझे रोका था। तो बाबा जी मैं इतनी इज्जत की काबिल हूँ। मैंने नहीं किया है, कानून ने किया है। कहते हैं दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है, तेरी हिदायत है कि रुक गया। दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुक तेरा आपका नाम क्या है?
ये आशिक बुखारी साहब, मुझे लगता है आज की महफिल में किसी ने रूबी को ताड़ा हो ना ताड़ा, आपने आए बच्चों में ज़रा बात पूछो। आ जाओ जी, आ जाओ। उसके साथ हमने बहुत काम किया हुआ। अच्छा, ये कमरा डॉक्टर जी आ जाओ, बैठ भी नहीं है तो डाल के लिए कुछ खलीफा खड़े बिल लैन की जरूरत नहीं करती। तो थोड़ा परमानेंट कॉलम आ रहा है न्यूज़ मोनी कह रही थी कि आपने नैना से मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं। जावेद को बुलाया, जावेद था भाई, डॉक्टर जावेद था, और उनको कहे दोस्तों को ले खाना खाई। कोई भी नहीं है ये हकीकत। ऐसा तो कोई नहीं। डॉक्टर तौसीफ साहब से चेक करवा वो चेक डॉक्टर साहब हाँ भी बिल्कुल मतलब मेरा नाम निकल गया बात पॉइंट मेरा भाई साहब की सुनी। अच्छा और अच्छा और कितना सा हो गया? मैंने एक बनानी बेबी आओ, चल बेबी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। आपका क्या नाम है? चाचा इतना टाइम नहीं होता बेबे, आप बैठे, इतना कहाँ टाइम होता है? आपका क्या नाम है? क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रही है? ये उठाएं। की नाक के ताड़ा ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਮੁਕਾਲ ਕੇ ये नीचे रखना डॉक्टर साहब। हो गया लो भाई, अप्रैल के एंड में अनाउंस कर दें हम दवाइयाँ शवाइयाँ सारी टीम बना दें। ये प्लान तो नहीं था, मुझे पता ही नहीं है। अप्रैल के एंड में आएंगे पूरी प्लानिंग के साथ। बस आखिरी इतवार हम उम्र की नहीं वेंटुलिन है वेंटुलिन काफी बढ़िया।
सैयद साहब बाबा जी आपके सराय था सबके अंदर खलीफा उन्होंने दी खिलाफत आज ये तो मैं रेडी लेकर अंदर जाना है। हाँ जी